The circulatory system. So students, today we are going to learn about circulatory system of human beings and the role of heart, blood and blood vessels. Let's continue. So today you will learn the name and describe the main parts of human circulatory system. You will describe the role of the heart, blood and blood vessels. So let us understand the function of circulatory system. The first function is to transport blood, oxygen, nutrients to the body. हमारी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है और उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. Now let us understand the structure of heart. Heart has 4 chambers. First 2 are upper chambers which are called as atria and 2 lower chambers which are called as ventricles. So here this is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. So what is the function of heart? It works as a pump to move the blood around the body. हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए हार्ट एक पंप की तरह काम करता है. नाउ लेट्स एग्जामिन हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट. पूरे हार्ट से ब्लड किस तरह से फ्लो करता है. तो मेनली हमारी बॉडी का जो अपर चैम्बर है राइट एट्रियम, ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेता है. So body say from the upper body blood reaches to the right atrium. Then blood is squeezed down into the right ventricle. यहाँ right ventricle में blood squeezed down हो जाता है and then taken to the lungs. फिर यहाँ से वो जाता है lungs तक जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देती है. उसके बाद जैसे ही ब्लड लंग्स तक पहुंचता है, ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस किया तो मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया. दिस ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. अब लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है एंड देन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्टार्ट्स इट्स जर्नी अगेन थ्रू आउट द बॉडी. फिर यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल से पास ऑन हो जाता है बॉडी तक. एओर्टा यहाँ पे सबसे मेन आर्टरी है जो पूरे बॉडी में ब्लड को देन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है. सो यहाँ पे इफ़ आई आस्क यू दैट कैन यू एक्सप्लेन हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट with a partner even without the diagram of heart, how will you do that? Let us understand. So here in this way you can explain the flow of blood in the human body. So here the body, human body is there. Then in the heart, in the right atrium, from body the carbon dioxide rich blood reaches to the right atrium. That carbon dioxide rich blood is also called as deoxygenated blood. It reaches to right atrium. From right atrium it reaches to right ventricle. Then from right ventricle it reaches to lungs. And then from lungs the carbon dioxide is replaced by oxygen. lungs में जैसे ही blood पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हट जाती है और ऑक्सीजन आ जाती है. एंड ये कैसे होता है? lungs contain smaller sac-like structures called alveoli, and these alveoli help in replacing the carbon dioxide in the blood. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम एल्वियोलाई करते हैं. सो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड देन इट रीचेस टू लेफ्ट एट्रियम. From left atrium it reaches to left ventricle and from aorta it reaches to the body. Aorta is an artery which takes the blood from left ventricle and then it gives back to the body. Again the blood become carbon rich when it flows in the body and then it again reaches to right atrium and this cycle continuously goes on. So यहाँ पे हमने अभी circulation समझा.
बट उस सर्कुलेशन में हम कंटिन्यूसली ब्लड के बारे में बात कर रहे थे. तो व्हाट इज़ ब्लड नाउ? So blood is a special fluid. It is mainly a special fluid which is flowing inside your blood vessels. जो आपके blood vessels में flow कर रहा है वो एक special fluid है. Mainly blood में 4 components होते हैं: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Let us understand the function of these components of blood. So red blood cells, if I say, red blood cells carry oxygen, nutrients and waste in the blood. And why we are called them red blood cells? हम उनको red blood cells क्यों बोलते हैं? Because these red blood cells contain a substance called as hemoglobin. They are made up of hemoglobin, I should say. Hemoglobin में heme word is for iron and globin is for protein. ये दोनों मिक्स होकर hemoglobin बनाते हैं. Hemoglobin is responsible for the oxygen carrying capacity of the blood. रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता है. एंड देन कम्स वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी. आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का काम वाइट ब्लड सेल्स करते हैं. दे फाइट विद द डिजीजेज, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. देन कम्स प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो हैं ये एक तरह से क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं. जैसे इंजरी हो जाती है कहीं और ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाता है. तो हाउ दैट ब्लीडिंग इज स्टॉप्स ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स. दे गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी एंड दे हेल्प इन द क्लॉटिंग प्रोसेस. और ये सब जो हैं कंपोनेंट्स इनको ईजी फ्लो या फ्लोट करने के लिए हेल्प करते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा एक तरह का स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है जो बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है ब्लड के अंदर. Now, if I ask you a quick question that which of the 4 blood components is responsible for preventing and stopping the bleeding when you have an injury, so what could be your answer? Yes, it's platelets. Next, the primary function of platelets is to stop and prevent the bleeding by forming clots. Once a blood vessel is damaged, it sends out a signal to attract platelets to the site. These tiny blood cells, they rush to the site and form a plug that acts as a temporary barrier to prevent the further bleeding. ये फर्दर ब्लीडिंग होने नहीं देता है, एक बैरियर की तरह काम करता है और वहाँ क्लॉट बना देता है जिससे फर्दर ब्लड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं करता है ब्लड वेसल से. नाउ व्हेन समवन हैज़ अ ब्लड टेस्ट, हाउ डू दे गेट टू नो ऑल व्हाट इज़ देयर इन द ब्लड और क्या प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड टेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज टेकन एंड केप्ट इन द ट्यूब फॉर टेस्टिंग. टू क्लोजली एग्जामिन इट, ब्लड अंडरगोज अ कंपोनेंट सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. सेंट्रीफ्यूज एक हाई स्पिनिंग मशीन होता है जो बहुत हाई स्पीड पर घूमता है जिससे सारे ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. अगर हम उन्हें अलग अलग करें तो कुछ इस तरह से हमें लेयर्स में दिखाई देते हैं. प्लाज्मा ऑन द टॉप लेयर, देन सेकेंड लेयर फॉर्म्स इज मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स. सो ब्लड इज डिवाइडेड इनटू these components with the heaviest parts at the bottom. As you know, the lighter parts will flow on the top and the heavier will settle down. Now blood vessels. What are blood vessels? These are the tubes or channels that carry blood throughout the body. आपके पूरे बॉडी में ब्लड को कैरी करने का काम ब्लड वेसल्स करते हैं. एंड मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं जिनमें वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज होती हैं और इन तीनों के साइज और स्ट्रक्चर फंक्शंस अलग अलग होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज. आर्टरीज आर द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल 3. इन सब में सबसे मेन थिक वॉल जो होती है वो आर्टरी होती है. एंड दिस आर्टरी withstand द हाई प्रेशर क्रिएटेड बाय द हार्ट. अब प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है बॉडी में तो एक प्रेशर क्रिएट होता है. उस प्रेशर को भी विथस्टैंड कर जाती है आर्टरी. एंड इसी प्रेशर को संभालने के लिए मतलब उसे ओवरकम करने के लिए थिकंड होती है. देन सबसे थिनेस्ट वॉल जो होती है वो होती है
कैपिलरी, अब ये थिनर क्यों होती है सबसे? सो दैट इसके वॉल्स से ऑक्सीजन शुगर जो है वो पास आउट हो सके, इन और आउट हो सके, इसीलिए ये जो वॉल होती है ये थिनर वॉल होती है। और वेन ये एक लेस मस्कुलर स्ट्रेची होती है देन द आर्टरी, so that blood which is moving from the body to the heart, it is moving at low pressure, so it also has a valve that helps the blood to go only one way। अब इसमें एक वॉल, इसमें वॉल्व्स भी होते हैं so that वो बैकफ्लो जो है ब्लड का उसे प्रिवेंट करते हैं। So each type of blood vessel has a unique role in circulatory system. Artery, they carry the blood away from the heart. Capillary, they assist in exchange of substances between the blood and the tissues. Vein carries blood back towards the heart। अब अगर हिंदी में इसे समझे तो आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाने का काम करती, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है ब्लड को। कैपिलरीज जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दैट हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है लंग्स के पास, और लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिलरीज ओनली। ये कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है, तो टिश्यूज़ और ब्लड में सब्सटेंस एक्सचेंज का काम करती है। देन वेन जो है वो पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और हार्ट को दे देती है। एक टिप है इसे याद रखने के लिए, अगर सिर्फ हम आर्टरी के लिए भी याद रखें, सो इट इज़ ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। इफ विल रिमेंबर दिस, सो वी कैन ईजिली make difference between artery and vein. So let's recap the chapter. Now the circulatory system delivers oxygen and nutrients to the body while also removing waste. First, heart. It is a muscular organ that has 4 chambers which pumps the blood around the body. Then blood has a 4 components: plasma, red blood cells, white blood cells and platelets, which carries oxygen, nutrients and waste. Blood vessels, there are 3 types of blood vessels in the body: arteries, veins and capillaries, which serves as a channel for the blood.